Good morning class. Today I'll start with the next topic in BST. It is called the classification of banks. As I show you the picture in the previous video, there are different kinds of banks. So we will start with the first classification on the basis of ownership. In this we have the first one, public sector banks. Public sector banks, as we have public enterprises, such sector banks are those which are governed or owned by the government of your country. Means at least 51% share in these banks must be of government. The government alone control over them. In our country, there are total 14 nationalized banks in 1969, and after that in 1980 there are 6 banks which can be nationalized as private banks. So they are known as the private sector banks. Their main working is that they work for the object for providing social services or social welfare to the general public. So public sector banks are governed and owned by the management. The control is in the hand of government completely. At least 51% share is of government. They said in our country, New India Bank of India merged with Punjab National Bank, and in addition to this, IDBI in this category also nationalized bank as our country. Then we have different kinds of public sector banks. Examples are mentioned here, like State Bank of India, State Bank of Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore. These are some examples of your banks which merged into public sector. Now there are total 21 banks which are working in public sector. These are the names of such 21 public sector banks. Such banks are of government and they are to be controlled and run by the government of our country. Next we have the second kind of banks. They are called the private sector banks. They are such banks which owned and controlled by the private sector or some individuals of the private sector. In this we have Jammu and Kashmir Bank, HDFC banks. They are known as the private sector banks. इनका जो कंट्रोल और इनका होल्ड होता है इस पर कम्प्लीटली प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है, गवर्नमेंट में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. एंड द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सच बैंक्स इज टू अर्न प्रॉफिट. Some name of private sector banks in our country: Axis Bank, HDFC Bank, Kotak, ICICI, Industrial. They are the banks of private sector. Next we have third, cooperative banks. As we have the cooperative societies कि एक दूसरे की हेल्प के लिए सोसाइटी इस्टेब्लिश होती हैं, एक दूसरे मेंबर्स की हेल्प के लिए. सेम एज इट इज़ वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि स्टार्ट करता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. The main object of these banks is to help its members. There are state cooperative bank, district cooperative bank, and primary loan societies are known as the cooperative banks of our country. So these are the classification on the basis of ownership. Next we have classification of banks on the basis of functions. कि what kind of function banks are performed. On the basis of those we will divide the banks into different parts. So I'll start with the first one. The first is commercial banks. The commercial banks accept deposits from the general public and give loan to the manufacturer or businessman for short term purposes. मतलब जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है सेविंग्स की सेंस में, ये बैंक उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं और मैन्युफैक्चरर को या बिजनेसमैन को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो ये लोन की सेंस में उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं. Such banks pay less amount of interest on deposit and charge high amount of interest from the loan. मतलब जिनको उन्होंने लोन दिया है उनसे तो वह हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और जिन लोगों का पैसा डिपॉजिट है उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे करते हैं. द डिफरेंस अमाउंट ऑफ दैट इंटरेस्ट इज द इनकम ऑफ सच कमर्शियल बैंक्स. Then we divide the commercial banks into two parts. The first is foreign commercial banks. These are banks which are based in some foreign countries. मतलब जिन बैंक्स का हेड ऑफिस तो फॉरेन कंट्री में है लेकिन उसकी ब्रांच हमारे कंट्री में है, मतलब हमारे इंडिया में है. दे आर कॉल्ड द फॉरेन कमर्शियल बैंक्स. मीन्स मेन एस्टैब्लिशमेंट इनकी फॉरेन कंट्री में हुई थी बट उसकी ब्रांचेस जब वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एस्टैब्लिश करते हैं. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में इनकी ब्रांचेस हैं. ये आपके फॉरेन कमर्शियल बैंक्स हैं. वी हैव दोहा बैंक, बैंक ऑफ कुवैत, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका. सच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन कमर्शियल बैंक्स. नेक्स्ट वी हैव इंडियन कमर्शियल बैंक्स. इंडियन कमर्शियल बैंक्स में जो इंडिया में बैंक्स आते हैं वही सभी हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए. देयर आर टू काइंड्स ऑफ बैंक्स मेनली इन आवर कंट्री: पब्लिक सेक्टर बैंक्स
एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक जो गवर्नमेंट के हैं और प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स के हैं, जो अभी मैंने प्रीवियस आपसे डिस्कस किया. नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड काइंड ऑफ बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. दे आर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक. From the name it is clear, industrial development. Such kind of banks gives medium and long term loan to the industries. इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए या नई इंडस्ट्रियल यूनिट को इस्टेब्लिश करने के लिए अगर बिजनेसमैन को फंड्स की या लोन्स की रिक्वायरमेंट है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं. जो यूजुअली बिजनेसमैन लोन लेते हैं बैंक से इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए, दे यूटिलाइज दैट मनी फॉर परचेजिंग लैंड, प्लांट एंड मशीनरी. इन एसेट्स को खरीदने में वो उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं. नेक्स्ट वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ सच इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इनटू 2 पार्ट्स, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल बैंक. नेशनल लेवल बैंक ऑब्वियसली जो नेशनल लेवल पर वर्किंग कर रहे हैं वो नेशनल लेवल के बैंक्स हैं, जिसमें आपने IDBI, SIDBI, IFSC, IFCI, ICICI, ये आपने सभी इनके नाम सुने होंगे. जस्ट वन मोर थिंग, इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू लर्न द फुल फॉर्म ऑफ सच बैंक्स लाइक IDBI की, SIDBI की, IFCI की और ICICI की. Next we have state level. Obviously these are those banks who are working at state level. इसमें आपके दो आते हैं, State Finance Corporation and State Industrial Development Corporations. Third we have the agriculture banks. Agriculture banks, such kind of banks, those who provide loans for the agriculture work only. Means if the agriculture persons need short-term loans for purchasing seeds, fertilizers, or they need to take long-term loan for the purchase of land or tractors, etc. So they can take loan from such banks. They are known as agriculture banks. इसके आगे दो categories हैं. The cooperative banks. These provide short-term loans to the agriculture sectors. इनकी जो ऑनरशिप होती है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कमर्शियल बैंक से थोड़ा डिफरेंट होता है. देर आर 3 टाइप्स ऑफ सच कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर वर्क करने वाले और प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज. सेकेंड वी हैव लैंड डेवलपमेंट बैंक. लैंड डेवलपमेंट बैंक मेन फंक्शन इज दे विल प्रोवाइड लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ लैंड. मीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माई लैंड इफ़ आई नीड लॉन्ग टर्म लोन्स, सो ये लैंड को सिक्योरिटी की सेंस में रखकर लोन ले सकते हैं इन लैंड डेवलपमेंट बैंक से. इन लोन से हम लोग, हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है इस लोन से ट्रैक्टर, लैंड की इम्प्रूवमेंट के ऊपर पैसा स्पेंड करना, ओल्ड कोई पुराना डेब्ट है हमारा उसको पे करना. सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक. दे आर स्टेट लैंड डेवलपमेंट एंड प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. सो दीज आर द लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. नेक्स्ट वी हैव the regional rural banks. Such banks was established in 1975 in the rural areas. कि जो बैकवर्ड और रूरल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने RRBs का इस्टेब्लिशमेंट किया. ये जो बैंक है इनको स्पॉन्सर करते हैं कमर्शियल बैंक्स और इनकी टोटल कैपिटल में से 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 35% शेयर कमर्शियल बैंक्स का होता है और 15% शेयर उस पर्टिकुलर स्टेट का होता है जहाँ पर ये इस्टेब्लिश है. इनका मेन फंक्शन है लोन प्रोवाइड करना स्मॉल ट्रेडर्स को, स्मॉल फार्मर्स को उनकी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ की डेवलपमेंट के लिए. सो बेसिकली ये आपके रूरल एरियाज़ में इस्टेब्लिश किए जाते हैं. Next we have other apex banking institutions. In that we have the central bank. आप लोगों ने सभी ने सुना होगा इसके बारे में. The central bank is the head, yeah, you can say the main bank of our country. In our country there is only one central bank. या you can say कि हर कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है और हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है that is रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI. They said according to Bill Rogers कि there are 3 main discoveries till now: फायर, व्हील एंड सेंट्रल बैंक. अभी तक पूरे वर्ल्ड में 3 चीज़ों की डिस्कवरी मेनली हुई है, एक तो फायर की, एक व्हील की और सेंट्रल बैंक की. सो सेंट्रल बैंक प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्री. जितने भी आपकी कंट्री में बैंक्स हैं, वेदर दे आर स्टेट लेवल, whether they are public sector, private sector, cooperative, agriculture, land development, any bank, all are working under central bank. You can say central bank is the head or the boss of all the banks. जितने भी बैंक्स की फंक्शनिंग होती है वो सब सेंट्रल बैंक के अंडर होती है. जो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का वो करेंसी इशू करने का काम करता है बाकी बैंक्स को. हर बैंक को अपनी रिपोर्ट सेंट्रल बैंक को सबमिट करनी होती है. सो आवर कंट्री
कंट्री सेंट्रल बैंक के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह से इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक, सो दे आर द सेंट्रल बैंक ऑफ सच कंट्रीज। नेक्स्ट वी हैव Exim Bank. Exim is Export Import Bank of India. This was established in 1982. फॉरेन ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए एग्जिम बैंक की रिक्वायरमेंट हुई। मींस आप फॉरेन ट्रेड करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रेड मतलब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एग्जिम बैंक आपको उस तरह की करेंसी प्रोवाइड करता है और एग्जिम बैंक आपको लोन्स प्रोवाइड करता है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ डील करने के लिए, जो आपको मशीनरी टूल्स की रिक्वायरमेंट है उनको परचेज करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव नेशनल हाउसिंग बैंक। दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1988. This bank was established for developing national housing societies in our country. कि ये उस तरह के बैंक है जिनका मेन ऑब्जेक्ट है लोगों को हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करना, और ये लोन्स इस तरह रिकन्स्ट्रक्शन के लिए या रीफाइनेंसिंग के लिए भी बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। रिकन्स्ट्रक्शन मीन्स किसी भी सिक यूनिट की रिकवरी के लिए। अब सिक यूनिट क्या होती हैं? ऐसी यूनिट्स या ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कई सालों से पास्ट में लॉसेस में चल रही हैं, तो उन इंडस्ट्रीज़ को उन लॉसेस से रिकवर करने के लिए जो बैंक्स फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, दे आर कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। देयर मेन वर्क इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिक यूनिट्स इन आवर कंट्री। द लास्ट वी हैव द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। Such bank's main object is to provide funds for the development of agriculture and rural areas. इनका main function है they provide short, medium and long term for the agriculture purpose. They will provide loans to the commercial banks. They will provide commodities to the exporters also. So these are called the NABARD banks of India. So that's all about today's video. The next topic related to functions of commercial bank that we will discuss in the next video. Thank you.